محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور آج کے دن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی۔ ناظرین، یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے جہالت کے اندھیروں میں روشنی بن کر آئے۔ تو آئے اس دن کے حوالے سے جانتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اس جشن عید میلاد النبی کو کیسے مناتے ہیں۔ سب اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو میں عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت بہت۔ اور آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور سب لوگ ربیع الاول کی جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس خوشیوں میں ہم لوگوں کو سب کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنا بھی ہو سکے اس دن کو اچھے طریقے سے منائیں۔ آج کا دن جو ہے یہ بڑا دن ہے، یہ مہینہ بابرکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ آج ہم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کل کا دن بھی، آج کا دن بھی، بلکہ یہ پورا مہینہ جو ہے یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ دن منانے کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی خوشیاں جو ہے نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے ہمارا گناہ جو ہے معاف فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ جہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے سب غریب دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو جو آپ کے پڑوس میں تو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت جو سیلاب کی صورتحال تھی، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے ان کی بھی جو ہے مدد فرمائے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو ہے ہم بھی ان کی مدد کریں۔ اور آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ متاثرین ہیں زلزلے سے، جو اس فلڈ سے جو متاثر ہوئے ہیں، اور 2005 کا جو زلزلہ تھا اس میں بھی بے شمار جو لوگ ہیں ابھی تک جو ہے ان کو ریلیف نہیں مل سکا۔ تو میں اس چینل کی وساطت سے آج یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب کو جو ہے ان مظلوم لوگوں کا، بے کس لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مہربانیاں کی ہیں یہ اسی کا جو ہے ہم جو ہے یہ مدد کر کے غربا کی یہ کہلوا سکتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب ایک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے جو ہم یہ اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بار پھر وقار صاحب کو یہ ہے اس چینل کی مبارکباد دیتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں ان سے عشق ہے، اور ایک ہماری نسبت ہے اللہ کے نبی سے، ہم اس کی امت میں سے ہیں۔ تو جس نبی نے ہمارے لیے غاروں میں رو رو کر دعائیں کی ہیں، تو آج ہم اس کی ولادت کے اوپر خوشی نہیں منا سکتے؟ آپ دیکھیں یہ سارا میرپور، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرپور سارا لائٹنگ سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ چوک شہیداں کے اندر ہم کھڑے ہیں، چوک شہیداں سے لے کے آپ F1 چلے جائیں، پورا ایریا میرپور کا گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو کمکمے نظر آئیں گے، لائٹیں ہی لائٹیں نظر آئیں گی۔ کیوں کہ مسلمان اپنے نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، مسلمان اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو خوشی بچے کی آمد پر وہی کرتا ہے جس کا اس بچے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم رسول اللہ کی خوشی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا رسول اللہ سے تعلق ہے، ہماری اس سے نسبت ہے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی رسول اللہ کا میلاد وہی مناتا ہے جس کی رسول اللہ سے نسبت ہے، جس کا رسول اللہ سے تعلق ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہی پیغام ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت کا ایک سال کے اندر ایک بار دن آتا ہے تو خوب بڑھ چڑھ کر اس دن کو منایا کریں، خوب چرچا کیا کریں، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اپنے نبی سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کس طرح اپنے نبی کو چاہتے ہیں۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ دھوم دھام کے ساتھ
साथ जुलूस निकाला जाए और धूमधाम के साथ जिसमें मिलादत मनाई जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल भी किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे जरिए नाल असीं जिहड़ा गल कर रहे हैं, सारा तन मन जान औलाद माल दौलत सब कुछ नबी पाक पर कुर्बान जाए तो सदके उन्होंने सारे मुल्क पर जिला आसानियाँ पैदा होन तो अच्छे हुक्मरान आवन तो असा लोगों वास्ते बेहतरी है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम एक बार जलवा फरोज थे करीम आका और सहाबा कराम बैठे हुए थे कि एक साहबी खड़े होते हैं और करीम आका से सवाल करते हैं, करीम आका ये बताएं कि जब इस दुनिया में किसी शय को रब्बे कायनात नहीं बनाया था तो उस वक्त रब्बे कायनात ने सबसे पहले किस शय को तख्लीक फरमाया था। अब करीम आका मुस्कुराने लगते हैं, हिकमत के मोती रोलने लगते हैं और सहाबा कराम की किस्मत जगाने लगते हैं और गोया यूँ इरशाद फरमाने लगते हैं कि साहबी तो तेरा सवाल भी कितना खूबसूरत है कि तू सवाल भी उसी से कर रहा है जो तेरे सवाल का जवाब है। तो सुन कि ए जाबर, जब अल्लाह करीम ने किसी शय को पैदा नहीं फरमाया था ना ज़मीन थी, ना ज़मान, ना चुन, ना चुना, ना ई, ना आ, ना सिकंदर, ना सुलेमान, ना मलाइका, ना रिज़वा, ना हुर, ना गुलमान, ना जिन, ना इंसान, ना मेरे दरखशां, ना ये ताबा, ना पहाड़ों की बुलंदियाँ, ना दरियाओं की जोलानियाँ, ना बहरों ना बर, ना खुश्को ना तर, ना बागो शजर, ना बरगो तमर, ना शाहो गदा, ना जूदो सहा, ना अर्ज़ो समा, ना फौज, ना सिपा, ना साहबा, ना साहबियत, ना ताबी, ना तबीयत, ना गौस, ना गौसियत, ना कुतुब, ना कुतबियत, ना अब्दाल, ना अब्दालियत, ना औताद, ना औतादियत, ना वली, ना विलायत, ना गौस, ना गौसियत, ना साहबी, ना साहबियत, ना नबी, ना नबूवत, ना रसूल, ना रिसालत। गर्ज ये कि अल्लाह करीम ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि लौला लमा अज़हर तो रुबूबिय्या, ए महबूब अगर आपको पैदा ना फरमाता तो मैं किसी शय को पैदा ना फरमाता। गोया के करीम आका ने यूँ इरशाद फरमाया कि ए जाबर, अल्लाह करीम ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया था। ये करीम आका का आज जो जश्न विलादत जो हम सुबह मनाएंगे, आज की रात करीम आका की विलादत हुई कि जिसके लिए हम गली मोहल्ले कुचों में चरागा कर रहे हैं। करीम आका की आमद के सिलसिले में हम अपनी खुशी का इजहार फरमा रहे हैं कि हमें जो जिंदगी मिली है, हमें जो सांसें मिली हैं, हमें जो इस वक्त रौनकें मिली हैं, ये उसी करीम आका के सदके में मिली हैं और उस करीम आका का आना हमारे बाइस से बरकत होकर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिनियामति रब्बिका फहद्दिस, कि जो मेरी नियामतें हैं ना उनका खूब चर्चा करो। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र कि अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो है ना हमने करीम आका आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया है। ये करीम आका के जिक्र का एक सिलसिला है। करीम आका की आमद के सिलसिले में हम करीम आका के गली कुचों में जाकर करीम आका के नारे लगाते हैं और उनके लिए तकरीरें करते हैं, उनके स्पीचेस करते हैं। करीम आका की सीरत किरदार के बारे में बताया जाता है, करीम आका की आमद किस तरह हुई, करीम आका ने आके दुनिया में क्या पैगाम दिया, फिर करीम आका का किरदार कैसा था, करीम आका की सीरत कैसी थी। और उनमें से एक बात सुन ले कि करीम आका की सीरत, हुजूर का किरदार यह था, करीम आका को लोग देखकर ये गवाही देते थे कि ये सादिक व अमीन है। करीम आका की जो गुफ्तार हुआ करती थी वो हमेशा सच्चाई पर मबनी हुआ करती थी। करीम आका जो किरदार था वो करीम आका का ऐसा किरदार था कि कुफ्फार ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम आप पर इस्लाम तो नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमने आप जैसे सादों को अमीन नहीं देखा, हमने आप जैसा बाकिरदार शख्स आज तक नहीं देखा। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं रब्बे कायनात हमें करीम आका के जिस तरह हम खुशियाँ मना रहे हैं उसी तरह करीम आका की सीरत और उसका किरदार हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इज़्ज़ो जल्लो शानहू के नाम से मैं अपनी गुफ्तगू में सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज के दिन की मुनासबत से आपसे गुफ्तगू करूँ। असल में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक अपनी गुफ्तगू करता है और एक इंसान का इल्म कितना है आप इससे अंदाज़ा लगा लें। इल्म की दुनिया में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म को मौजूद करने की 3 चीज़ें हैं, भूख, सफ़र और जगराता। असूल इल्म के लिए एक इंसान ने भूख कितनी देखी, सफ़र कितना किया और रातों को वो जागा कितना, इससे आप उसका इल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं इस दिन को इस मुनासबत से देखता हूँ कि ऐसी हस्ती का ज़हूर इस दुनिया में हुआ जिस हस्ती ने अरबी और अजमी के फ़र्क को मिटाया, जिस हस्ती ने मजदूर के पसीना खुश्क होने से कबल उसकी उजरत उस तक पहुँचाने को फरमाया, तो उनकी पूरी ज़िंदगी मेहनत की, अजमत की, बालादस्ती के नफाज के लिए थी। तो आज का दिन हमें इस बात पर उकसाता है कि हम बासियत मुसलमान
अपनी वो जिम्मेदारी जो है ना पूरी करें कि हम उनके नक्शे कदम पे चले, हम किसी के हक तलफी ना करें, और मेहनत कश जो इस ज़मीन पर मालिक अर्ज़ व समा जिसके लिए खुद दोस्ती का दावा करते हैं कि मैं मेहनत कश का दोस्त हूँ, जिसकी मेहनत की मरून मिन्नत ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, इन बिल्डिंगों से अगर उसकी मेहनत निकाले जाए तो ये मिट्टी के ढेर हैं, और आज भी उसकी मेहनत की मरून मिन्नत इंसानों के पास पहुँचता है। तो मेहनत कशों के राज को दुनिया में नाफिज करने का नाम इस्लाम है। चूँकि हम आदम सफ़ीउल्लाह की औलाद हैं और पैगम्बर सलातो सलाम की उम्मत हैं, तो हम पे ये वाजिब है कि दुनिया के अंदर जो बालादस्ती है इंसानों के दरमियान, इंसानों की, इसको मिटाने के लिए पैगम्बर सलातो सलाम को उनके जो फरमान है उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम उस वक़्त की तैयारी करें। चूँकि आज दुनिया इस मेज पे पहुँच चुकी है कि एक बटन दबाने से आप दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में मौजूद इंसान से गुफ्तगू कर सकते हैं, उस तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, उसके मसाइल को सुन सकते हैं। तो आज का ज़माना जो है ये आलमगीर इस्लाम के लिए है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम मेहनत की, अज़मत की, बालादस्ती के नफाज को यकीनी बनाएं ताकि इस्लाम पूरा कुराए अर्ज़ पे पहुंच सके। ये जो मिलाद है हम अपनी खुशी से बहुत प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं, और ये नहीं कि ये आज पहली मरतबा मना रहे हैं, हम शुरू से मनाते हैं। ये हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके के साथ और उनकी याद में और उनके प्यार में हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। हमारे साथ जो कुछ भी हो, लेकिन हम अपने प्यारे नबी की सुन्नत के अलावा और कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाने चाहते कि जो हमारे नबी और हमारे अल्लाह ताला को हमारी कोई भी बात बुरी लगे। हमारी जान भी जाती है तो जाएगी, लेकिन हम उनके रास्ते पे अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो इस दिन हम अपने घरों में चिरागा करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भेजते हैं। हम मुसलमान हैं और हमें नबी अलैहिस्सलाम उनके विलादत के दिन के लिए हमें जितनी हो सके खुशियाँ मनानी चाहिए और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने हमें सबक दिया है इस्लाम के बारे में, और उस उसूल के मुताबिक चलना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम के उनकी ज़िंदगी के बारे में, जैसा कि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह हमें भी बढ़ चढ़ के 12 रबीउल अव्वल दिन की खुशियाँ मनानी चाहिए और हर बंदे को घर में खुशियाँ मनानी चाहिए। जैसा कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये दीन है, हमें ईमान है कि हम इस 12 रबीउल अव्वल के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनाएं। वलीका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर। कि जैसा है नसीरा है साइल तो पुराना है। कि जैसा है नसीरा है
سائل تو پرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں ہم سب کو بہت ہی عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کو منانا چاہیے ان کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہلا گلا اور شور شرابہ یہ نہیں چیز ہونی چاہیے اس دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. تو یہ آپ سنے تھے لوگوں کے خیالات جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے. تو زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کیمرہ مین محمد عمر کے ساتھ گلوبل ٹی وی میرپور آزاد کشمیر.